So good morning everyone. Anand Rathi welcomes you to the Commodity Gurukul session. So in this session we'll understand the trends of the commodities, like where the commodity is heading. So basically this particular session will be more on the technical analysis done by our research team. So the session will be presented by Mr. Ghanshyam Gupta. He is our senior technical analyst. So Ghanshyam, you can start the session. Everyone. Uh, Good morning, everyone. I am Ghanshyam Gupta. I am presenting to you this webinar on behalf of Anand Rathi. Let us begin with the webinar for the day. That is, let's understand the trends of commodity. We would like to bring to your notice that this webinar is being recorded, and we will draw your attention to the standard disclaimer which is available at the end of the webinar. Our topic is let's understand the trend of commodities. What is meant by trend? So basically, there are two types of trends in the market. That is uptrend and the downtrend. When the market is moving on the higher side and making a higher high, it means the trend is on the higher side. When the market is on the downside, the trend is on the downside. And when there is a no direction of the market, when the market is getting consolidated, so it means there is a low trend into the market. So what we are going to cover today, that is COMEX gold, MCX gold, COMEX silver, MCX silver, MCX bulldex, following with the NYMEX WTI crude, MCX crude oil, MCX copper, MCX nickel, MCX metal dex. Finally, moving to the dollar index and the USD/INR. Let's start with the first content, that is MCX gold. This is the MCX gold chart. One second. This is MCX gold chart. What we are seeing after in 2020 in August month, the price has made a high of 2075 and started moving on the downside because the RSI has also at the meantime given the negative crossover. With the help of the RSI, the strength was getting weakness, and we have seen a fall into the gold price, which has touched the level of 1700, which is a 1675 strong support level. Why it is a strong support level? Yeah, Kancham, sorry to interrupt you. Keep it Hindi and English mix, so it will be good for the participants. Okay. Yeah. We have seen an all-time high of 2075. Price has started melting down because on the RSI front, the RSI has given the negative crossover. उसके लिए क्या हुआ, प्राइस भी साथ में नीचे की तरफ मूव किया और इट हैज टेकन अ सपोर्ट ऑफ 1675, जो प्रीवियस जो पुराना सपोर्ट लेवल था उसका एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल लिया और वहां से प्राइस मूव हुआ ऑन दी अपसाइड. यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ. आपने देखेंगे अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट उसने ऊपर की तरफ दिया, बट इस जो ब्रेकआउट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पर प्रीवियस हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है. देखेंगे यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया, अगेन यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर टेस्ट किया तो ये अपना रेजिस्टेंस लेवल लिया, यहाँ पर प्राइस मूव नहीं किया तो हमारा विस्पा हो गया, यहाँ पर अपना फेल हो गया और ब्रेकआउट. उसके कारण प्राइस और से नीचे की तरफ आया. अगर हम ट्रेंड लाइन पहले से बना लेते कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है तो हमको यहाँ पर इजीली मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर एक हर्डल है जिसके थ्रू अगर 1902 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो वहां से प्राइस नीचे की तरफ आएगा. तो वहां पर एग्जैक्टली हमने वहीं पर देखा. अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो हमने क्या देख रहे हैं कि आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ है. अगर व्हाट एग्जैक्टली ये आरएसआई कहता क्या है? आरएसआई ये कहता है कि जो मूव है, मूव ऊपर की तरफ है, अगर मूव ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्ट्रेंथ कितना है, वो मूव में कितनी ताकत है कि ऊपर की तरफ जाए. ये अपना आरएसआई कहता है. अभी आरएसआई यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ है, एक यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ है. अगर ये मूव यहाँ पर सक्सेसफुल होता है, अगर ये क्लोजिंग देता है ट्रेंड लाइन के ऊपर और ये अपना रेजिस्टेंस के ऊपर, तो इट मींस यहाँ पर हम लोग एक नया हाई देखने की संभावना है which will take towards the new high. So what exactly taking towards the technical point, what we have written, यहाँ पर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है एग्जैक्टली वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है. आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन हो रहा है. लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज पॉजिटिव. इमीडिएट सपोर्ट 1760. एट प्रेजेंट हमारा गोल्ड कॉमेक्स गोल्ड ट्रेड हो रहा है ओनली 1810 पे. 1760 का सपोर्ट है जो यहाँ पर एग्जैक्टली वहां पर
ये जो लेवल, ये लो है, ये 1760 का लेवल है। अगर 1760 के नीचे आता है तो काफी खराब है, जहां पर अपने को उसके नीचे 1675 का डॉलर दिख सकता है गोल्ड में। अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे, रेजिस्टेंस लेवल 1901 का है, जहां पर 1901 का जो हर्डल है, मैंने जो कहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, बट हर्डल के कारण ये नीचे की तरफ आ गया है। प्राइस इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। ये ब्रेकआउट की तरफ है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 1901 डॉलर जाएगा, अगर उसके ऊपर क्लोज है तो ये नया हाई की तरफ जाएगा। So our take will be on the COMEX gold is only buy above $18-20। 1810 चल ही रहा है। अगर $1820 का क्लोजिंग आपको मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। पहले टारगेट के लिए $1901 और स्टॉप लॉस रहेगा $1760 का डॉलर ऑन द क्लोजिंग बेसिस। So our take only buy COMEX gold above 1820 for the target of 1930। If you find any successful flow, any decisive flow, अगर हमको 1901 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है जब भी, तो आप और बाय कर सकते हो फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। तो ये रहा कॉमेक्स गोल्ड। नाउ मूविंग टू आवर द डोमेस्टिक गोल्ड, दैट इज एमसीएक्स गोल्ड। ये वीकली चार्ट है। एग्जैक्टली ये सेम उसी तरह बन रहा है, बिकॉज एमसीएक्स गोल्ड फॉलोइंग द कॉमेक्स गोल्ड। अगर यहाँ पर देखिए कॉमेक्स गोल्ड का ये यहाँ पर ब्रेकआउट की तरफ है, तो सेम चीज अपना कॉमेक्स गोल्ड भी अपना ब्रेकआउट की तरफ है। यहाँ पर भी अपने को पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, तो सेम चीज यहाँ पर भी अपने को ऑन दी वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। तो एट प्रेजेंट अगर हम एमसीएक्स गोल्ड देखेंगे, अपना ट्रेंड शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल, बिकॉज रेंज बाउंड में चल रहा है, शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो पॉजिटिव है। अपना इमीडिएट सपोर्ट इस ट्रेडिंग है 47,477। 47,477 का अपना वी हैव द इमीडिएट सपोर्ट, एंड द नेक्स्ट सपोर्ट स्टैंड एट 46,330। ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो 49,400 का रेजिस्टेंस लेवल है, जो 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 अपना ब्रेकआउट लेवल है। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ क्लोजिंग अबव 49,400, इट विल मूव ahead of 51,875। So we have what we have seen in the MCX gold chart. RSI is on the RSI is given the positive crossover. Price has bounced back from the support level. Support level se apne we have seen the price has started moving on the higher side. If you can see a candlestick chart, candle is making higher high. Any successful close above 48,472, price will rally towards 51,875. So there is a two possibility. Price will close above. If doesn't close above, then what? If price is trader can go long only above 48,475. At present, 48,053 is the trading price at CMP. So the people can go only buy above 472 for the target of 51,875. And what will the stop loss? Stop loss will be 46,300. If price, अगर price 48,472 के ऊपर नहीं जाता है, तब क्या करना चाहिए? If price doesn't close above 48,472, then wait for the lower level, that is 46,800, 47,200. अगर ये रेंज में अपने को, if we see any kind of price of around 46,800, 47,200, then one can go for the long. हम वहाँ पर enter कर सकते हैं with the stop loss of 46,800. So our trend is positive. If anyone want to buy a gold, so wait for the level of 48,700, 48,472 on the higher side, or wait for the lower side for to enter for the long side. Moving towards the COMEX silver. This is the COMEX silver ka weekly chart. Still price is getting consolidated after a huge rally. So you can see a huge rally from year to year, made a high of 29.85. Once again, prices tested the levels of 29.85, but it doesn't close above 29.84. इस $30 का टेस्ट करके नीचे की तरफ आया है, और स्टिल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा कंसोलिडेशन मोड में सिल्वर चल रहा है। हमने अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम लोअर हाई टू, so we can find it's a support level. Apart from this, यहाँ पर support level की तरफ है। RSI is also moving on the downside. It means the strength of the silver is on the downside. If price take the support of this level, that is 28.41, if it doesn't close above 28.41, the price will move towards 32.11. And once again repeating, if you find a price doesn't close below this level, that is 25.05, यहाँ पर क्लोज की तरफ नहीं जाता है, टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 25. इट विल बी अ बिंगो कॉल.
because the price there is a 2 times support level and still consolidating. यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर टेस्ट करके ऊपर की तरफ आया है, ऑफिस से नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर टेस्ट किया है बट क्लोज नहीं दिया है, ऑफिस से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर ऑफिस हाई की तरफ टेस्ट किया बट डजंट क्लोज अबाउट दिस, same time repeating the history, repeat the same. If price test the level of support line and it start moving on the higher side, one can go for the long here. The risk will be very much low and the target will be very much high. That is target will 28.41. Any decisive close above 28.41, अगर $28.41 के ऊपर क्लोज जब भी आपको दिखता है, आप चांदी में एंटर कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 32.11. What is the technical take? The technical take, price is trading at 25.16, short term is negative, long term is neutral, immediate support $24.6, $25.6 चल रहा है, $24.6 का सपोर्ट लेवल है. अगर आपको $24.6 की तरफ कभी प्राइस टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप बाय कर सकते हो. रेजिस्टेंस लेवल 28.41 का रुपये टारगेट. Price is trading 25.6 near the support level 24.6. If price respect the level of 24.60, the price will rally towards 28.42. If price breach the level of 24.6, अगर सपोर्ट लेवल तोड़ता है नीचे की तरफ तो वहां पर अपने को फॉल मिलेगा. विक्ट्री टेक कॉमेक्स सिल्वर टुवर्ड्स $19.22. अभी हम जाएंगे एमसीएक्स सिल्वर की तरफ. अपना एमसीएक्स सिल्वर क्या कर रहा है, हमने देखा है कि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर कॉमेक्स में. यहाँ पर सेम हमको देख रहे कि प्राइस काफी मूवमेंट था, बाद में नाउ प्राइस गेटिंग कंसोलिडेट. देयर इज अ नो ट्रेंड फॉर दिस एमसीएक्स सिल्वर, इज ट्रेडिंग इन रेंज बाउंड. यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम में हैज बीन इंक्रीज, प्राइस गिरा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. अगर यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट लेता है अपर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और यहाँ से रिवर्स की तरफ जाता है तभी अपने Gancham, sorry to interrupt. There is one query from the client. He is saying like your voice is little low, so keep your pace little slow and little louder. ओके. The pace should be little slow. ओके. यहाँ पर एमसीएक्स सिल्वर हम देख रहे हैं जहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है. प्राइस इज ट्रेडिंग नियर द सपोर्ट लेवल ऑफ द ट्रायंगल पैटर्न. अगर आप देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है. अगर यहाँ पर सपोर्ट लेवल लेता है और यहाँ से मूव करता है ऊपर की तरफ तभी अपने को बाय करना है. देन ओनली यू पीपल हैव टू गो फॉर द बाय. इफ द प्राइस ब्रीच द लेवल on the closing basis means what? This is the weekly chart. If next week if the price close below this upward sloping trend line, then only the price will going to fall. What is our take? The short term is neutral, long term is also neutral. Immediate support 66,678. At present silver price is trading at 68,319. So it means there are nearly 1,500 points the support level is there and the upside 72,000 is a resistance level. Our take is what? Any decisive close above the trend line, the price will rally towards 77,000. 72,000 के ऊपर क्लोज जाता है तभी अपना जो ट्रेंड है जो नेगेटिव न्यूट्रल चल रहा है तभी पॉजिटिव होगा. अगर हम वॉल्यूम डेटा देखेंगे, इफ लुकिंग टुवर्ड द वॉल्यूम डेटा, प्राइस विल टेक द सपोर्ट ऑफ upper sloping trend line which look most likely. The trader can go around 72,000 only for the target of 77,949 for the target of 70,000. Why? Because 72,000 के ऊपर ही तेजी है. अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके जाता है ऊपर तो शॉर्ट टर्म विल बी पॉजिटिव बट लॉन्ग टर्म इज स्टिल नेगेटिव. So risky trader can go for the buy if the price tests this level and start moving on the upside. Moving towards the MCX Bulldex. MCX Bulldex is a combination of the it's an index which is a combination of the gold and silver. There is 70% gold is there and 30% silver is there. Why? If you can see gold chart once again, price has taken a support and started moving on the higher side. Same thing is happening with the MCX Bulldex. Price has taken a support and started moving on the higher side. Looking towards the chart on the weekly chart, price has started making higher high and the higher low and it's trading into the channel. This is a channel. In the channel, what we have seen, price has taken a low, tested the level of upward sloping trend line, and again it has moving towards the lower trend line of the channel and started moving on the higher side. It means what? Price will definitely test the level of the upward sloping trend line of the channel. So at current scenario,
the price is having a resistance level of 47,000, 15,100 level is a resistance level. Any close above this, price will start moving on the higher side, which will take Buldex to test the level of higher side. अगर यहाँ पर अपने को क्लोजिंग मिलता है ऊपर की तरफ, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर कभी भी अपने क्लोजिंग दिखता है, प्राइस मूव करेगा ऊपर की तरफ, which will take towards the Buldex towards higher side and test the level of the channel. What is the technical point what we are recommending? Short term is positive. Why short term is positive? Because price has started moving on the higher side. लॉन्ग टर्म इन न्यूट्रल, इमीडिएट सपोर्ट 14,320, अभी चल रहा है 14,718 चल रहा है, तो यहाँ पर आपने को नीचे 400 पॉइंट का सपोर्ट लेवल है नीचे की तरफ, और ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है 15,450. ट्रेडिंग इन चैनल हमने जैसे बताया वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, द ट्रेडर कैन ओनली गो अराउंड, नीचे अगर ऊपर की तरफ नहीं आता है, रेंज में आता है 14,600 14,700 आप बाय कर सकते हो, 15,450 टारगेट के लिए. स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 14,320 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. Moving towards the energy sector, that is NYMEX WTI crude. हम क्रूड में काफी अच्छे रैली देखे हैं, $35 से $32 से लेके हमने ऊपर देखा, ऊपर की तरफ पहुंचा है $77, वहां से प्राइस नीचे की तरफ आना चालू किया. यहाँ पर हमने डॉजी पैटर्न देखा है, और उसके बाद हमने देखा है बेरिश कैंडल. ये वीकली चार्ट है, तो इट मींस और प्राइस नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर, हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखना चालू कर दिया है. जिन्होंने बाय किया था यहाँ से, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग देखना चालू कर दिया है. उसके साथ आरएसआई भी हमको नीचे की तरफ जा रहा है. आरएसआई एट प्रेजेंट ट्रेडिंग एट 60, मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ बहुत सारा रूम है. इट मींस व्हाट, जो स्ट्रेंथ है क्रूड का जो रैली हुआ था वो स्ट्रेंथ छूट गया है, अभी स्ट्रेंथ नीचे की तरफ जा रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी प्राइस अपने को नीचे तरफ दिखेगा. हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया है लाइन, इसके थ्रू हमको दिख रहा है कि प्राइस का पहला सपोर्ट आ रहा है 66.88, उसके नीचे आ रहा है 60.4. जब तक प्राइस $70 के ऊपर नहीं जाता है तब तक क्रूड ऑयल नेगेटिव ही रहेगा. यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा, जो अपने को यहाँ पर दिख सकता है तकरीबन $55 मेरे को दिख रहा है नीचे आएगा, जो अपना 50% रिट्रेसमेंट कर रहा है. तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो क्रूड ऑयल है जहाँ पर गिरावट अपने को दिखेगी, जो नीचे की तरफ तकरीबन $55 और $60 की तरफ लेके आ सकता है. नाउ मूविंग टुवर्ड द व्हाट द टेक्निकल पॉइंट. शॉर्ट टर्म इज न्यूट्रल. न्यूट्रल इसलिए कहा क्योंकि वहां पर प्राइस ने डॉजी बनाया, वहां से नीचे की तरफ आना चालू हो गया. लॉन्ग टर्म स्टिल पॉजिटिव. इमीडिएट सपोर्ट हमने को दिख रहा है 66.88, 66.80, और रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है अपने $77. We have already discussed, after a huge rally we have seen a profit booking. RSI has given a negative crossover. Trader can go short at $71.24 for the target of 66.80 and $60.40. नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस रहेगा $77,000 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. ये NYMEX क्रूड था. अभी हम अपना क्रूड देखेंगे, दैट इज MCX क्रूड, जहां पर अपने ट्रेडिंग होता है. MCX क्रूड भी हम देखेंगे सेम चीज, रैली हुआ है. ये अगस्त महीने का चार्ट है. कल अपना जुलाई ऑन दी मंडे वी हैव द एक्सपायरी फॉर द जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए मैंने अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा दिया है, बट जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में एक नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं दिखाया है. रैली देखेंगे 4,240 से 5,700 इतना रैली हुआ है. यहाँ पर डॉजी पैटर्न बना है और प्राइस स्टार्टेड मूविंग ऑन द डाउन साइड. अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट में, इसने ऑलरेडी 23.6% फिबोनाची लेवल का सपोर्ट ले लिया है, बट क्लोजिंग नहीं दिया है. अगर नेक्स्ट वीक अगले मंडे अगर प्राइस आपको जब भी 5,346 के नीचे ट्रेड मिलता है, आप शॉर्ट की तरफ चले जाना. सेम स्टॉप लॉस रहेगा. स्टॉप लॉस विल बी अ बिंगो स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. योर फर्स्ट टारगेट विल बी 5135 and 4964. वी आर bearish on the crude oil. Trend is neutral. Short term, long term is positive. Immediate support 5346, immediate resistance level 5688. RSI has given a negative crossover जो हमने दिखाया यहाँ पर. Trader can go short below 5375 for the target of 5135, 4964. Respective stop loss will be 5700. Our next topic is the metal, that is MCX copper. और डेली चार्ट हमने देख रहे हैं. यहाँ पर हम देखेंगे कि 720 का काफी सपोर्ट लेवल है. 720 और how we have find out 719 is support level. This is support level.
price has tested this level and started moving on the downside. Any successful close above 719, the price have started given a rally. यहाँ पर rally हुआ, वहां से price नीचे की तरफ आया. We have seen a profit booking because there was a huge dodgy pattern which we have seen here, and the price started moving on the downside. We have seen lower low, lower high. One second. Lower low, lower high. At current scenario, what we are seeing, price has given a breakout of downward sloping trend line. Due to absence of volume, the price have not moved on the higher side. हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है, बट वॉल्यूम नहीं था यहाँ पर, इसके कारण ये रैली नहीं हुआ है. इट मीन्स अगर अपने को अगले हफ्ते अगर वॉल्यूम प्रीवियस वीक का ऊपर जाता है वॉल्यूम, and the price is also moving on the higher side, so one can enter into the copper with a stop loss of 720. No, with a stop loss of 719. Support is 719 on a closing basis. Moving to technical part, the trend is neutral, long term is neutral. Immediate support 719 and immediate resistance 742. अभी यहाँ पर 730 रुपए 90 पैसे पे कॉपर चल रहा है. सपोर्ट है 719 का और रेजिस्टेंस लेवल है 742 का. Trading above the downward sloping trend line, but due to low volume, price is not moving on the higher side. The trader can go long around 728 और 725 के लगभग आपको दिखता है कॉपर, तो आप बाय कर सकते हो 742 और 749 के टारगेट के लिए, एंड स्टॉप लॉस भी 719 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. तो वी आर बाय ऑन दी कॉपर. सेम चीज आप निकल में देखेंगे. आप हमने निकल में हमारा लास्ट वीक हमारा बाय कॉल चल रहा था निकल में 1410 का टारगेट के लिए, बट वो टेस्ट नहीं हो रहा था, तो हम लोग ने बुक करा दिया प्रॉफिट. जैसे 1410 के ऊपर गया प्राइस वहां पर 1400 हमने 38 का हाई देखा है यहाँ पर कल. अभी एट प्रेजेंट प्राइस इज ट्रेडिंग एट 1435. बट हम देखेंगे कि यहाँ पर अपने को हर्डल है, जहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस ने टेस्ट किया था 1457 का, वहां से प्राइस गिर गया. अब वहां से प्राइस मूव करने चालू किया, 1150 के लगभग आया था प्राइस, वहां से प्राइस मूव करना चालू किया. अगेन प्राइस इज हैविंग अ हर्डल नियर 1457. अभी 1435 चल रहा है. अभी जो रैली हुआ है 1350 से लेके 1435, यहाँ पर जो फ्रेंच बायर है वहां पर बोलेंगे कि एंटर ना करें. रैली स्टिल पॉजिटिव. आपको अगर बाई करना है तो 1457 के ऊपर क्लोजिंग देता है तभी बाई करना, उसके पहले आपने बाई मत करना. यहाँ पर अगर प्राइस टेस्ट करता है 1457 और नीचे की तरफ जाता है, तो जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर होंगे वहां पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 1457 के स्टॉप लॉस से. यहाँ पर अपने को नीचे 1350 दिख सकता है, तो बट क्लोजिंग का वेट करना है जिसको भी बाय करना है. आरएसआई भी अच्छा खासा मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, तो इट मींस व्हाट, स्टिल द ट्रेंड इज पॉजिटिव. व्हाट आवर टेक्निकल टेक, शॉर्ट टर्म इज पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म इज पॉजिटिव. सपोर्ट लेवल आता है $1406, सॉरी 1406 रुपीस, एंड रेजिस्टेंस लेवल आता है 1457. Any close above 1457, price will give the breakout of rounding pattern. ये राउंडिंग पैटर्न है, अगर इसके ऊपर जाता है तो ये राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा, जहां पर कम से कम अपने को ऊपर में 300 रुपया ऊपर और दिखने की संभावना है. तो ट्रेडर कैन गो लॉन्ग above 1457 level for the target of 1554 with the stop loss of 1406 on a closing basis. So we are positive on the nickel. Now we are coming to the metal deck. This is the combination of the metal, that is the copper, nickel, zinc, lead. These are the metals which is the combination of this, and this is actually the index, metal dex index. यहाँ पर से हम देखेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ, द ट्रेंड इज पॉजिटिव. हम देखेंगे तो ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर नीचे, नाउ इट्स मूविंग ऑन द हायर साइड. यहाँ पर हम देखेंगे ये हाई था, इससे प्राइस ने ब्रीच किया. अभी यहाँ पर 1 सेकेंड यहाँ पर इसके ऊपर जाता है तो इट विल मेक अ न्यू हाई. तो our recommendation will be, you can go with the buy into the metal dex index for the target of 16,000 on the higher side. जिसको रिस्क नहीं लेना है तो those people only can buy above 15,500 for 15,500 for the target of 16,000. What is our technical take? The trend is positive, short term and the long term दोनों पॉजिटिव है. सपोर्ट आता है 14,800, रेजिस्टेंस लेवल आता है 15,680. जिसको रिस्क नहीं लेना है वो बाय कर सकते हैं 15,680 के ऊपर ही, विच विल बी ब्रेकआउट ऑफ राउंडिंग पैटर्न. अगेन राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ. लुकिंग टुवर्ड द मोमेंटम आंसर, प्राइस विल ब्रीच द अपर लाइन, विच विल
looks most likely. यहाँ पर ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ, सॉरी ऊपर की तरफ अभी काफी जगह है ऊपर की तरफ, स्ट्रेंथ इज स्टिल पॉजिटिव. The trader only can go buy above 15,680 for the target of 17,220 and stop loss only 15,520. हमने अभी कवर किया है प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी में हमने नाइमेक्स वुड और एमसीएक्स वुड कवर किया, बाद में मेटल से हमने निकल, कॉपर कवर किया है. अभी हम मूव करेंगे विच इज द डॉलर इंडेक्स. डॉलर इंडेक्स भी काफी महत्वपूर्ण होता है अपने को. जब भी हमें गोल्ड सिल्वर क्वेश्चन लेते हैं तो अपना डॉलर इंडेक्स कहाँ मूव कर रहा है वो अपने को बहुत ही देखना बहुत जरूरी है. अभी हम ये डॉलर इंडेक्स में देखेंगे $103 से ये $90 तक आया था. यहाँ पर हमने देखा कि काफी द ट्रेंड वाज ऑन द डाउन साइड. स्टिल द ट्रेंड इज नेगेटिव, बट हम वीकली चार्ट में देखेंगे कि प्राइस अगेन इज ट्रेडिंग नियर द resistance level, or we can say it's on the verge of giving the breakout of the downward sloping trend line. RSI strength is still there on the higher side. यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देता है तो प्राइस मूव करेगा काफी फास्ट, जो अपने को तकरीबन यहाँ पर $97 $99 की तरफ आने की संभावना है. बट हमको क्लोजिंग का वेट करना है. हम देखते हैं कि इसके अंदर टेक्निकली व्हाट क्या सजेस्ट करते हैं. टेक्निकली शॉर्ट टर्म इज न्यूट्रल, लॉन्ग टर्म स्टिल नेगेटिव, बिकॉज अभी तक नेगेटिव ट्रेंड में ही है. शॉर्ट टर्म इसलिए हमने न्यूट्रल रखा है क्योंकि यहाँ से टू टाइम व्हिच हैज टेकन द सपोर्ट लेवल एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग ऑन द हायर साइड. यहाँ पर 2 टाइम टेस्ट किया है बट क्लोजिंग नहीं दिया है, इसलिए हम स्टिल न्यूट्रल रखेंगे शॉर्ट टर्म. इमीडिएट सपोर्ट $89.66 का है. अभी चल रहा है $92.72. सपोर्ट आता है 89.66 और रेजिस्टेंस लेवल आता है 93.43. मतलब तकरीबन यहाँ पर अगर देखेंगे 70 से 75 पैसे का अपसाइड का रेजिस्टेंस लेवल है. Any close above 93.43, price will give the breakout of the rounding pattern, which will take towards the price 95.78 and $99.99. यहाँ पर डॉलर काफी स्ट्रांग होएगा. रुपया is going to be decrease according to the dollar index. बट उसके अगर यहाँ पर डॉलर बढ़ता है तो वहाँ पर गोल्ड का प्राइस भी काफी ऊपर की तरफ जाएगा. So we have to see we are on the dollar index. We have to wait for the level of 93.43 level. अगर अपने जब भी क्लोज 93.43 के ऊपर दिखता है तो one can go for the long with the target of 95.78, 99.99. Stop loss will be 89.66 on a closing basis. Now moving towards our last instrument, that is USD/INR. This is the daily chart we have taken. Price is on the verge of breakout. RSI is on the verge of giving a positive crossover. यहाँ पर हमने देखा है कि 71.9 से डॉलर ऊपर $75.2 तक गया. तकरीबन ₹3 हमने ऊपर की तरफ देखा है. यहाँ पर it has taken a resistance level. The price has given RSI has given a negative crossover and price started moving on the downside. अगर यहाँ पर देखेंगे तो छोटा सा अपने को पैनेट पैटर्न दिख रहा है. यहाँ पर अगर अपने को क्लोजिंग देता है, इफ एनी क्लोज अबव दिस, अगर मंडे को अगर प्राइस फ्राइडे के हाई के ऊपर ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है तो वन कैन गो फॉर द लाइन. और जो लेवल है 74.76, अभी 74.71 चल रहा है. जब भी आपको 74.76 के ऊपर ट्रेड दिखता है USD/INR में आप बाय कर सकते हैं. और जो प्रीवियस हाई था हमने देखा था 75.08, जो रेजिस्टेंस लेवल था, तो 20 पैसे 30 पैसे का अपने को ऊपर की दिखेंगे, वहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं. आपको अगर वीकली क्लोजिंग जब भी आपको 75.10 के ऊपर जाता है तभी आप और बाय कर सकते हो. जहां पर रुपया अपना और डेप्रिशिएट होगा वहां पर अपने को दिख सकता है तकरीबन $75.50, 75.80, 50 से 80 पैसे की वहां से तेजी होगी डॉलर में, जो अपने को दिखेगा 75.80. एट प्रेजेंट हर्डल है 75.08 का. ऊपर की तरफ 74.76 के ऊपर जब भी जाता है USD/INR आप बाय कर सकते हो 20 पैसे के टारगेट के लिए. और नीचे अगर 74.60 का सपोर्ट लेवल है, टेक्निकली क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है. इमीडिएट सपोर्ट अभी चल रहा है 74.71, इमीडिएट सपोर्ट आता है 74.26, जो काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है. और रेजिस्टेंस आता है 75.08. Any close above 74.76 or trade above 74.76, price will give the breakout of downward sloping trend line, which will take towards 75.08. Momentum oscillator भी RSI is also giving on the verge of giving a positive crossover.
So what is our take? The trader can go long above 74.76 for the target of 75.05, 75.45 level respectively for the clock with the stop loss of 74.26 stop loss on a closing basis. That's it, Pinkesh, from my side.